Welcome back to the second topic for acid, base, and salt. The next topic is what do all acids and all bases have in common? Acid और base में common क्या होगा? All acid and bases, when they will dissolve in water, when they are dissolved in water or any aqueous solution made out of them, they furnishes cations and anions. These cations and anions are responsible for the conduction of electricity or electric current. So acid या base जो है वो in their aqueous solution they are good conductor of electricity because they can furnish cations and anions in their aqueous solution. For example, we'll take the acids, acid like CH3COOH or H2SO4, HNO3, H2SO4, CH3COOH. The H2SO4 can furnish H plus and HSO4 minus ion. In HNO3, we have H plus and NO3 minus ion. For CH3COOH, CH3COOH, when they dissolve in water, they can furnish CH3COO minus acetate ion and H plus ion in the solution. तो यहाँ पर जो एसिडिक प्रॉपर्टी है या एसिड को जब भी हम पानी में डिसॉल्व करेंगे या बेस, सपोज बेस NaOH, when it furnishes Na plus and OH minus solution. In short, they will have cations and anions which make them chemical or which makes them conductive substances जो electricity को conduct कर सकते हैं. Moving forward, what happens when acid or base are in water solution? Acid or base को पानी में डालते क्या होगा? As already mentioned, when water reacting with acid or when water dissolved in acid or when water is diluted with acid, or sorry, acid is diluted with water rather than. So HCl, like acid diluted with water, it furnishes H3O plus and Cl minus ion. Basically HCl bond breaks which produces H plus and Cl minus. This produced H plus ion combining with H2O. That means H plus combining with H2O to produce H3O plus ion, which is known as hydronium ion. Similarly, base, when aqueous solution of base, H2O means aqueous solution is made up, will have sodium Na plus ion and OH minus ion. So in short, when acid and base dissolved in water, they furnishes H plus and OH minus ion respectively. Moving forward, आगे बढ़ते हैं. ये टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा क्या है? हाँ, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो आप तो वो आप ये तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज नाउ इन न्यूट्रलाइजेशन द H is combining H hydrogen ion or H hydronium ion H plus ion is combining with the OH produced to produce water. So it is also known as a neutralization reaction. One of the example of neutralization reaction we can write it as. Next activity, and not doing these activities, we have some important questions as an indexed question. Why do HCl, HNO3, etc. shows acidic character in their aqueous solution, while the solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? Make क्विक रिवीजन के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने ही मालूम, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर HNO3 और HCl को आप जो है एसिडिक कैरेक्टर उनमें है, लाइक अल्कोहल और ग्लूकोज में एसिडिक कैरेक्टर नहीं है. अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl having ionizable H plus ion, but अगर अल्कोहल की बात कर रहा हूं CH3CH2OH called ethanol, ये इथेनॉल है. ये इथेनॉल में ये जो H plus आयन है वो आयोनाइजेबल नहीं है, और कोई भी सब्सटेंस की जो एसिडिक कैरेक्टर होती है वो आयोनाइजेबल H plus आयन पर डिपेंड करती है. H plus फ्री जब होगा तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऐसे क्वेश्चंस जो है वगैरह हम डिटेल डिस्कशन लेने वाले, लेकिन आगे बढ़ते हैं टॉपिक में. We have how strong acids or base solutions are. हमने डिस्कशन तो कर लिया कि एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस, लेकिन ये एसिडिक सब्सटेंस कितने स्ट्रांगली एसिडिक है या बेसिक सब्सटेंस कितने स्ट्रांगली बेसिक है, ये जानकारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, नॉट क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिवली तो हमको पता है कि ये एसिड है ये बेस है, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली मतलब ये एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है या ये बेस की स्ट्रेंथ कितनी है,
कितना स्ट्रॉन्ग ये एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग ये बेस है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस आर, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, उसको पता लगाने के लिए डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन है पीएच मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जो पीएच होता है, पीएच, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच? P stands for potence and H stands for H plus ion concentration. Potence of H plus ion concentration. Potence मतलब strength. कोई भी सॉल्यूशन के अंदर H plus ion की जो स्ट्रेंथ होती है, पोटेंस होती है, पोटेंस इज जर्मन वर्ड, पोटेंस मींस स्ट्रेंथ ऑफ H plus ion. pH को स्ट्रेंथ ऑफ H plus ion कहते हैं। सॉल्यूशन के अंदर H plus ion हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसके बेस पर उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, एसिड हो या बेस। और सबसे पहली बार ये जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था सोरेनसन ने इन 1909 थ्रू द स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर रिएक्शंस होते हैं, डाइज में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, और वो H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो मेजरमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की मेजरमेंट को सिंपल बनाने के लिए सोरेनसन प्रोवाइडेड अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल, सोरेनसन इन 1909, सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और जो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ है उसको उसने 1 to 14 के स्केल पर, सॉरी 0 से लेके 14 के स्केल पर डिस्क्राइब किया है। और ये पीएच की जो वैल्यू है बिटवीन 0 to 14, उसके बेसिस पर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड की जा सकती है। ये स्केल जो है वो यहां पर मेंशन किया गया है एज अ पीएच स्केल। पीएच स्केल की जो मेजरमेंट है या एसिडिक स्ट्रेंथ की जो मेजरमेंट है, इट इज डन बिटवीन 0 to 14। आप देख सकते हो अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है, पीएच इज इक्वल टू 7, तो वो सॉल्यूशन है न्यूट्रल इन नेचर। pH less than 7, the solution having acidic character. pH greater than 7, the solution having basic character. OH minus concentration is higher in case of pH value greater than 7. pH less than 7 means H plus ion concentration is higher. तो ये है pH स्केल जिसको हम डिटेल डिस्कशन में लेने वाले हैं। pH स्केल के थ्रू हम कोई भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कंपेयर करने वाले हैं। But in short, pH value less than 7, acidic, pH value greater than 7, the substance is basic, and those which are having pH equal to 7, they are neutral in nature. pH means a negative logarithm minus negative logarithm of H3O plus ion concentration to the base 10. Logarithm का जो base है वो हमेशा 10 लिया जाएगा। ये pH का फॉर्मूला है pH कैलकुलेशन के लिए। pH is negative logarithm of H3O plus ion concentration to the base 10. Potence of H कहते हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं pH स्केल। pH स्केल जो है वो pH मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। pH स्केल के थ्रू कोई भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड होता है। कोई भी सॉल्यूशन की pH को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, accurate measurement and approximate measurement. Approximate measurement of pH can be done through pH paper, pH indicator, etc. और एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ pH जो है वो pH मीटर के थ्रू कैलकुलेट की जाती है सॉल्यूशन के लिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको शो करना चाहूंगा। pH पेपर के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन की pH को कैसे मेजर किया जा सकता है। आप देख सकते हो एक स्ट्रिप फॉर्म में pH पेपर है मेरे पास। pH पेपर के ऊपर यहाँ पर स्केल दिया जाता है, कलर इंडिकेशन जो है वो 1, 3, 5 वगैरह जैसी pH वैल्यूज उस पर मेंशन की जाती है। ये pH पेपर है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ लिटमस पेपर। सिमिलर तो नहीं कह सकते, लेकिन लिटमस जो है वो रेड एंड ब्लू के फॉर्म में अवेलेबल है। ये pH पेपर जो है वो येलोइश कलर का एक ऐसा पेपर आता है जिसमें से मैंने pH पेपर का एक स्ट्रिप लिया हुआ है। ये pH पेपर को एक गिवन अननोन सॉल्यूशन है मेरे पास, ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन के अंदर ये pH पेपर को मैं डिप कर रहा हूं। ये सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद ये pH पेपर का जो है कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इट चेंजेस टू ब्लूइश कलर। ये जो pH पेपर का जो स्ट्रिप था
जिस पर इंडिकेशन है, कलर इंडिकेशन, अगर मैं उसको साथ उसको कंपेयर कर रहा हूं तो इट्स पीएच इज समवॉट बिटवीन 12 to 13, करेक्ट। देख सकते हो जो कलर है उसके साथ इसको मैच कर रहे हैं, पीएच इज बिटवीन 12 to 13। मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास था उसकी पीएच वैल्यू 12 से ज्यादा है और 14 से कम है, जब जबकि पीएच का जो कलर है पेपर का ये ब्लूइश हो गया है। यहां पर ये अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है, मैं एक्यूरेट मेजरमेंट पीएच पेपर से नहीं कर सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास एक और सॉल्यूशन है बीकर में, पीएच पेपर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर से मैं इसको डिप कर रहा हूं और पीएच पेपर का कलर जो है वो फिर से चेंज हो गया है। देख सकते हो थोड़ा सा पिंकिश ऑरेंज कलर है ये, जो 1 और 3 पीएच के साथ मैच कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास ये बीकर में था उसकी पीएच बिटवीन 1 और 3 है। अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट की जा सकती है बाय यूजिंग पीएच पेपर। पीएच पेपर की तरह ही पीएच इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे सॉल्यूशंस आते हैं जो पीएच का कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट कर सकते हैं। परफेक्शन के साथ अगर आपको पीएच मेजर करनी हो यू नीड पीएच मीटर, लेकिन मेजरमेंट ऑफ पीएच आपके सिलेबस में नहीं है। आपको खाली सोरेनसन ने दिया हुआ पीएच स्केल वो समझना है और साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। पीएच हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है दैट वी हैव टू डिस्कस। सबसे पहले पीएच स्केल स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर a scale for measuring the hydrogen ion concentration in a solution is called a pH scale which has been developed. किसने डेवलप किया है ये? सोरेनसन।